भगवद गीता का अध्याय 15 श्लोक 11 से 20 तक। येतन्तो योगिंश्चैन पश्यन्त्यात्मनिवस्थितम् येतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैन पश्यन्ति चेत्स यदादित्यगत तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मिकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिना देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचामन्न चतुर्वेदम् सर्वस्य चाह हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोंच वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेद्विदेव चाहम् द्वाविमो पुरुषो लोकैकक्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषसेव्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रमाविश्य बिभर्तिव्यः ईश्वरः यस्माैक्षन्तितो हम शराद्पि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवं सम्मोहो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति मां सर्वभावन भारत इति गुह्यत्मन् शास्त्रमिदमुक्तं मयान् एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतिकृत्यश्च भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्या योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। Bhagavad Gita, Chapter 15, verses from 11 to 20. Striving yogis too are able to realize the self enshrined in their heart. The ignorant, however, whose heart has not been purified, know not this self in spite of their best endeavors. The radiance in the sun that illumines the entire world, and that which shines in the moon and that which shines in the fire too, know that radiance to be mine. And permeating the soil, it is I who support all creatures by my vital energy, and becoming the sub-full moon, I nourish all plants. Taking the form of fire, as Vashvanara, lodged in the body of all creatures and united with the prana, exhalation, and apana, inhalation, breaths, it is I who digest and assimilate the four kinds of food. It is I who remain seated in the heart of all creatures as the inner controller of all, and it is I who am the source of memory, knowledge and the ratiocinative faculty. Again, I am the only object worth knowing through the Vedas. I alone am the origin of Vedanta and the knower of the Vedas too. The perishable and the imperishable these are the two kinds of Puranas in this world. Of these, the bodies of all beings are spoken of as the perishable, while the Jivatma or the embodied soul is called imperishable. Yet, the Supreme Person is other than these, who, having encompassed all the three worlds, upholds and maintains all, and has been spoken of as the imperishable Lord and the Supreme Spirit. Since I am wholly beyond the perishable world of matter or kshetra, and am superior even to the imperishable soul, Jivatma, hence I am known as the Purushottama, the Supreme Self, in the world as well as in the Vedas. Arjuna, the wise man who thus realizes me as the Supreme Person knowing all, he constantly worships me, the all-pervading Lord, with his whole being. Arjuna, this most esoteric teaching has thus been imparted by me. Grasping it in essence, man becomes wise and his mission in life is accomplished. Thus, in the Upanishad sung by the Lord, the science of Brahma, the scripture of yoga, the dialogue between Sri Krishna and Arjuna, ends the 15th chapter entitled, The Yoga of the Supreme Person. यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्निरूप होकर चार प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। क्योंकि मैं नाशवान जड़ क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्ययुक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। यहाँ श्रीमद् भागवत गीता उपनिषद योग शास्त्र के रूप में जाना जाने वाला शास्त्र, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद का 15वां अध्याय, सर्वोच्च व्यक्ति का योग, समाप्त होता है। इससे आगे के श्लोक अगले भाग में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में लिखना जय श्री कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।